Hi dear students, I am Hitat sir. Today I will teach you the third indicator of economic development, that is PQLI, Physical Quality of Life Index. In my previous two videos I taught you two indicators. The first one was growth rate of national income and the second one was growth rate of per capita income. The third indicator is more important because these have lesser limitation compared to the prior two. So let us begin with our topic. First, improvement in quality of life. What is quality of life mean? Quality of life that means means a person should have the financial well-being. He should have a health factor, good health factor, or health facilities, social relationships, emotional well-beings, work, that is employment, then personal safety, right? These all are included in quality of life, right? We can say the aim of development is to improve standard of living, and the development has taken place or not, that can be analyzed with the help of PQLI, that is physical quality of life index. Let us discuss what is PQLI. Mainly, the PQLI is a quality of life, and that is depends on the different types of goods and service that person consume, right? Now consumption refers, the first one is consumption of food, fuel and non durable goods which we are consuming. Consumption of durable and semi durable goods, that is asset, we can say. And consumption of service during a period of time by person or group of people. This consumption standard or living standard determine the PQLI, that is physical quality of life index. That means a person can satisfy his basic need like calorie requirement, food calorie requirement, that is known as non durable goods. If person has a better place for living, he or she has transport facility like vehicle, two wheeler or we can say four wheeler, that is known as durable goods. And he has capacity to educate their family members, that is known as getting service, or we can say should have the capability to pay the money to the doctors and can get the uh, we can say medical services. So that is known as consumption of service. So if person has the potential, has the ability to pay off or and purchase all such goods and services, then we can say the quality of life is good. So mainly consumption and living standard is identified as PQLI, or physical quality of life. So ultimately, if living standard of people goes up, we can say the quality of life goes up. So which aspect, now the next point is which aspect are included in PQLI? Let us discuss. Mainly, uh, PQLI includes aspect like food, that is calorie and proteins and fat proportion. Then health and medical service, that is the doctor to population, that is number of doctor available uh, and to population. Then housing and clothing facilities, education and entertainment, that is percent of population getting primary and secondary education. Then transport, communication, information service, right? The extent of concrete road, railway lines, number of telephone per capita, these are included. Next is energy, then population having access to pure drinking water, you can say average life expectancy, infant mortality rate, drainage facilities, right? This average life expectancy and infant mortality rate will explain you in the next slides. So these all 10 factors are included in PQLI, that is physical quality of life index. If there is an improvement in all these 10 factor, then we can say
कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है देन वी कैन से कि भाई हमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। So that indicators which has the highest value is given 100 points. Mainly in PQLI, physical quality of life index, they give 100 point to each and every elements. Now developed country give greater importance for the improvement, or we can say for the measurement of improvement, they give importance to the indicator which is PQLI, physical quality of life index. So mainly keeping in mind all that is two indicator, national income and per capita income, Maurice D. Morris presented the physical quality of life index because he found that there are number of limitation is there in growth rate of national income and growth rate of per capita income. So they have invented PQLI. In this index, mainly betterment of quality of life of human being is considered. यहाँ पे उन्होंने पॉपुलेशन पे ध्यान दिया है कि भाई पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है कि नहीं, दैट शुड बी एनालाइज, राइट. सो यहाँ मीन्स द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव, वी कैन से डेवलपमेंट हो रहा है, राइट. अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती जा रही है, वो लोग ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विस कंज्यूम कर पा रहे हैं, दे हैव द कैपेबिलिटीज टू consume and utilize such services, then we can say development is increasing. If any country's quality of life is higher than that of other country, then country is considered more developed. So हम दो कंट्री का PQLI इंडेक्स को एनालाइज करेंगे. अगर एक का PQLI इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है then we can say that country is more developed compared to another one. So mainly there are three standard to measure the PQLI. Let us discuss these three standard, or we can say three determinants. Let us start. The first is the extent of education. The second one is life expectancy. The third one is infant mortality rate. चलो वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे that is extent of education. Extent of education means a literacy level, right? कि भाई टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में से कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, दैट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन. तो लिखा है द लिटरेसी लेवल ऑफ कंट्री डिटरमाइन द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन. द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड out of total population determine the extent of education. The second determinant is life expectancy. That means number of years on an average the population is living. अभी इंडिया में कुछ अराउंड 68 ईयर्स है, ऑन एन एवरेज हर पीपल जो है वो 68 ईयर्स जी रहा है, राइट. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि भाई बंदा बॉर्न हुआ वहाँ से लेके कब तक वो ऑन एन एवरेज अच्छी लाइफ जी रहा है. तो अगर कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है देन वी कैन से डेवलपमेंट हो रहा है. अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो वी कैन से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव, द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड दिस शोज द एवरेज लाइफ. क्योंकि ऑन एन एवरेज हम इसको मेजर कैसे करेंगे कि बॉर्न कब हुआ था और उसकी डेट कौन सी है. सो सबकी एवरेज निकालेंगे और अल्टीमेटली वी कैन फाइंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. If it increase then we can say medical service of country is good. The third point is, and the third determinant is infant mortality rate. So पूरे एक साल में हम यहाँ बेस ले रहे 1000 जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें से कितने न्यू बॉर्न बेबी जो है बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती है, उसको एनालाइज कर रहे हैं. तो अगर ये डेथ रेशियो कम है, अगर ये डेथ रेशियो कम है देन वी कैन से डेवलपमेंट हो रहा है और वी कैन से हेल्थ केयर सर्विस ऑफ कंट्री इज गुड. बट अगर ये डेथ रेशियो ज़्यादा है देन वी कैन से हमें हेल्थ केयर सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा. तो देखते हैं
During 1 year, the number of infants would die before 1 year. Before 1 year, out of 1,000 births is known as infant mortality rate. If infant mortality rate falls, it can be said that healthcare service of country is good, right? So death ratio कम होना चाहिए. ये बहुत बार शॉर्ट 1 मार्क और 2 मार्कर में भी पूछ लेते हैं, तो इसको ज़रा याद रखना. नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. उससे पहले एक फार्मूला भी ज़रा याद रख लेना. अगर पी क्यू एल आई की फार्मूला हमें फाइंड करनी है, मीन्स अगर पी क्यू एल आई फाइंड करना है, इंडेक्स फाइंड करना है, तो उसकी फार्मूला है लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीजन फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स. कि भाई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ने ये 3 ही डिटर्मिनेंट्स क्यों लिए और इसी के ऊपर क्यों फोकस किया, तो चलो देखते हैं. मेनली द डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दिस 3 फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्रीज. हर कंट्री के लिए ये डेटा जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं. और ये तीनों जो एलिमेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स है, वो आउटकम बेस है, राइट. नेशनल इनकम में प्रॉब्लम होता था कि भाई एक्यूरेट इनकम नहीं फाइंड कर पा रहे थे. पर कैपिटा इनकम में भी एवरेज इनकम शो कर रहे हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं था. बट यहाँ पे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि भाई एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी, इसके एक्यूरेट डेटा हम फाइंड कर सकते हैं. सो इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस 3 इंडिकेटर्स आर प्रोडक्ट बेस्ड, दैट मीन्स आउटकम बेस्ड, एंड हैंस फुलफिल जस्टिफाइबल स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन. और इसीलिए हम कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री का ये डेटा अक्वायर करके उसको कंपेयर कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई ओनली 3 इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड. नेक्स्ट इज, अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, राइट. तो चलो देखते हैं द फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. सो स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1 रहेगा, पहले तो हर इंडिकेटर को हम 100 वेट देंगे, दैट इज लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी को. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंट्री के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको ग्रेड देंगे इन एलिमेंट के ऊपर बिटवीन 0 to 100. फिर जो हम उनको ग्रेड असाइन करेंगे उनका समीशन कर लेंगे, दैट इज टोटल करेंगे. उसको टोटल करने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमें फाइंड करना है एवरेज इंडेक्स. सो जो डेटा हमें मिलेगा दैट इज नोन एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. ओके, सो सबको आ गया होगा किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है. नाउ देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो पहला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा, पीक्यू वाला अगर 100 के नज़दीक आता है तो हम बोल सकते हैं कि भाई तीनों इंडिकेटर के परफॉर्मेंस बढ़िया है, राइट. बट अगर वो 0 के नज़दीक आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों इंडिकेटर के परफॉर्मेंस सही नहीं है, वहाँ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. और ऑलवेज याद रखना है इसकी वैल्यू 0 to 100 के बीच में ही रहेगा, राइट. मेनली 2 स्टेट को भी कंपेयर करने के लिए PQLI एस्पेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, 2 कंट्री को भी उनके आउटपुट को भी कंपेयर करने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं. तो जितना PQLI हायर, डेवलपमेंट इज़ मोर. अगर PQLI इंडेक्स इज़ लेसर देन डेवलपमेंट इज़ लेसर. सो ये है उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. अब देखते हैं इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. तो मेनली PQLI जो है वो इंक्लूड कर रहा है लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, राइट. वो डायरेक्टली टच कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ को, राइट. PQLI बेटर इंडेक्स इसलिए बिकॉज पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थी, जहाँ जबकि वो डेटा भी एक्यूरेट नहीं था, जबकि इसके डेटा एक्यूरेट है, राइट. इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है जबकि ड्रॉबैक्स बहुत कम है, राइट. इसलिए ये भी एक PQLI का पॉजिटिव एस्पेक्ट है. PQLI से हम अलग अलग कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वी कैन से स्टेट वगैरह को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, राइट. और रूरल अर्बन एरिया की भी कंपैरिजन कर सकते हैं, मेल फीमेल की कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज़ दिस आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस. मेनली
PQLI के जो लिमिटेशन है उसमें पहला है कि भाई ये तीन ही एस्पेक्ट को कंसिडर कर रहा है, जबकि हमें पता है कि इनकम भी उतना ही ज़रूरी है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए, बट PQLI इंक्लूड ओनली थ्री एस्पेक्ट, राइट। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है, ये भी एवरेज ही शो कर रहा है, राइट। तो हम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते हैं कि कितना बैकवर्डनेस है या कितना स्पीडीली कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स कौन से तीन में से कौन से एलिमेंट में ज़्यादा डेवलपमेंट है। और अगर किसी कंट्री का PQLI हाई है तो हम ऑलवेज ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही रहा है, राइट। और ये भी सही नहीं है कि ये तीनों एलिमेंट को हम 100 ही वेट दे, राइट। इट कैन बी पॉसिबल सम एलिमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, सम आर लेस, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। सो दिस इज द लिमिटेशन। देन यहाँ पे हम ग्रोथ ऑफ इनकम हैज़ हाई इम्पोर्टेंस, राइट। इनकम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट इसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है। और जो डेवलप कंट्रीज़ है उनके जो PQLI इंडेक्स है वो ग्रो करेंगे स्लोअर रेट से, राइट। बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने डेवलपमेंट अचीव कर लिया है, तो बट ऑब्वियस उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह बहुत ही हाई होगा कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, तो वहाँ पे अब इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, राइट। सो उसको जब हम डेवलपिंग कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो बट ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ऐसा हमें लगेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, राइट। सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन फ्री टू आस्क मी एट एनी टाइम, राइट। These are my contact number and email ID.